2019. That was the first time I made my first cold call, and I still remember it took me 40 minutes to do that. It was painful and I was hesitant and मुझे मन नहीं कर रहा था वो कॉल करने का. And today in the last 2 years I have closed deals worth more than 4 crores just using a cell phone. How is that possible? ये कैसे possible हुआ and how I able to do that? That's exactly what I'm going to share in this video. So if you want to get better in sales, you cannot miss this video. Hi, this is Ayush. I welcome you to my channel. So on this channel, I create videos on client acquisition and how you can get better in attracting clients and growing your business. So let's see those 13 lessons which I have learned in the last 2 years of my journey, which can help you a lot to improve your conversion and get similar results. Lesson number 1, fall in love with no. And this is by far the number one mistake all the salesperson make, is that they expect that उनके सारे कॉल क्लोज हो जाएंगे and the moment they start getting the no, वो एक demoralization loop में चले जाते हैं and they feel like उनसे नहीं हो पाएगा. Guys, you need to understand, sales जो process है वहाँ पर आपको ज़्यादा rejections मिलेगा, ज़्यादा no मिलेगा. So you should not absolutely fear rejection, you should rather love it because that's how the game is. यहाँ पर आपको ज़्यादा no सुनने को मिलेंगे ना कि yes, because let's say अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हो और 10 लोग qualified है तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे. doesn't matter आप कितने अच्छे क्लोजर हो, right? So you are going to get more no's than yeses. Just always remember this in your mind. Lesson नंबर 2, वर्क ऑन योर टोनैलिटी. ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है एंड इट इम्पैक्ट्स अ लॉट, बिकॉज आप एक सेंटेंस को कैसे बोल रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है ना कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलूँ कि व्हाट इज़ योर चैलेंज, राइट, बट अगर मैं उसको यही सेंटेंस बोलूँ, प्लीज़ टेल मी मिस्टर प्रॉस्पेक्ट व्हाट एग्जैक्टली आर योर चैलेंजेस. सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टोनैलिटी. One is looking very straight but second one is more empathetic, and second वाले में क्या होगा, prospect ज़्यादा open up होगा. तो इसीलिए depending on the questions that you are asking, if you change your tone lower and high, accordingly you will get better results. And it is a very small thing but it produces massive changes in your conversion and your closing rate. So make sure you work on your tonality. आप अपने sales call recording को सुनो and आप काम करो उस चीज़ पे and it will massively change your results. Lesson number 3, start sharing the stories. We humans love story, isn't it? Like हमें बचपन से स्टोरी सुनाई जाती थी. Why? ऐसा क्यों? It's because हम स्टोरीज को समझ सकते हैं. स्टोरीज ईजी होता है हमें चीज़ों को समझने के लिए. And that is why जब आप सेल्स कॉल पे रहोगे, whenever you trying to explain something, use stories. नाउ व्हेन आई से स्टोरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉमिक बुक खोल के वहाँ के स्टोरी सुनाने हैं. स्टोरीज का मतलब ये होता है कि आप एनोलॉजीज यूज़ करो, आप कुछ केस स्टडीज शेयर करो अपने पास्ट एक्सपीरियंस का, अपने टेस्टिमोनियल्स को शेयर करो जिससे लोगों को लगे कि हाँ दे कैन ऑल्सो अचीव द सिमिलर रिजल्ट. Because sales call is all about moving them away from the pain and taking them towards their desire. And यदि ये आप एक स्टोरीज के थ्रू आप उसको बता सकते हो, then your chances of conversion will increase a lot. Lesson number 4, master the art of listening. क्या? बट आयुष, मुझे तो लगा मुझे सिर्फ बोलना है सेल्स कॉल पे. जी नहीं, you should listen more than talking. I'll tell you one thing, जिस कॉल पे मैंने ज़्यादा बात किया है वो सारे के सारे कॉल मेरे क्लोज नहीं हुए हैं एंड मेरे पास इसका डेटा है. एंड जो कॉल पे मैंने कम बात किया है, मैंने राइट क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे कॉल्स मेरे क्लोज हुए हैं. तो इसीलिए स्टार्ट लिसनिंग मोर, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉस्पेक्ट्स मोर रादर दैन जंपिंग एंड टॉकिंग एवरी टाइम. लेसन नंबर 5, मास्टर टेक्स्ट कम्युनिकेशन. यस, सेल्स कॉल ज़रूरी नहीं है हमेशा कॉल्स पे हो, सेल्स बहुत बार टेक्स्ट पे भी हो सकता है. एंड टेक्स्ट इज़ अ ग्रेट मीडियम टू कम्युनिकेट विथ योर प्रॉस्पेक्ट्स. ऐसा क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा ओपन अप होने के चांसेस रहते हैं. बिकॉज बहुत बार प्रॉस्पेक्ट हेजिटेंट होते हैं कॉल पे आने को, बहुत बार वो नहीं आपको शेयर करेंगे सब कुछ आपके साथ बिकॉज दे आर हेजिटेंट. बट अगर वो मैसेज पे है देन इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू कम्युनिकेट विथ यू. एंड ट्रस्ट मी, मैसेज इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड रैपो विद द पीपल. एंड वहाँ पे लेट्स से अगर आपने उससे कम्युनिकेट किया, आपने रेलिवेंट रिसोर्सेज शेयर किए and you build the trust with them, then your chances of conversion will increase a lot. So start practicing chat communication. वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करना है जो आप एक सेल्स कॉल पे करते हो. आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछना, वहाँ पर आपको बोलना कम है, आई मीन टाइप करना कम है, बट आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है वहाँ पे, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल विल ओपन अप. लेसन नंबर 6, लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस. तो होता क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप सामने वाले के सिचुएशन को समझो एंड उससे आप एम्पैथाइज करो. तो इन जनरल सेल्स कॉल में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करो तो हमेशा याद रखना, एक प्रॉस्पेक्ट, they are always moving away from a pain
टू अ डिजायर्ड सिचुएशन। तो वहाँ पे इन जनरल आपको उस पेन को एलिवेट करना पड़ता है, राइट? बिकॉज जब वो पेन फील करेंगे तभी वो एक प्रोडक्ट लेंगे। तो वो पेन आप तभी एलिवेट कर पाओगे जब आप इमोशनली चीज़ों को समझ सको, आप उनके सिचुएशन को समझ सको, आप उनसे एम्पैथाइज कर सको। एंड द मोर यू डू दीज थिंग्स द मोर ट्रस्ट यू आर गोइंग टू बिल्ड विद देम, बिकॉज प्रॉस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ ये मुझे समझ सकता है, राइट? एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। आप कैसे हो सकते हो इमोशनली इंटेलिजेंट? आपको अवेयर रहना पड़ेगा इस सिचुएशन को लेके, आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा सामने वाले के सिचुएशन से। एंड आप किताब पढ़ सकते हो इस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी सारे किताब है। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस concept and you can start applying in your sales call. Lesson number 7, get comfortable with discomfort. So as I was saying to you, sales call पे आपको पेन एलिवेट करना पड़ता है। आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस को समझना पड़ेगा, उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहे थे, बिकॉज अगर उनको रियलाइजेशन नहीं होगा उनके मिस्टेक का, वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तो बहुत बार ये अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं सेल्स कॉल पे। एंड दैट इज़ वेयर यू शुड नॉट हेजिटेट, बिकॉज आप अगर हेजिटेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और अगर इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो उसका आपको रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई गेट कंफर्टेबल इन आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर हो पाओगे और उतना ज़्यादा आपको बेटर इसमें रिजल्ट्स मिलेगा। लेसन नंबर 8, मास्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो होता क्या है ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स? तो बहुत बार ये होगा कि आप जब सेल्स कॉल पे रहोगे अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, वो बोल तो कुछ और रहे होंगे बट उनका मीनिंग कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, जनरली प्रॉस्पेक्ट्स बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, बट ये कभी भी रियल ऑब्जेक्शन या रियल रीजन नहीं होता है। इसके पीछे का हमेशा एक दूसरी वजह होती है। तो आपको वो दूसरी वजह जाननी होगी, आपको वैसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जिनसे आप वो जान सको। बट अगर आपको कोई प्रॉस्पेक्ट बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है एंड अगर आप वो मान लोगे तो सेल्स कॉल खत्म वहीं के वहीं। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कर सकते हो कि हे मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अगर हम ये पैसे को साइड पे रखें, डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग स्टॉपिंग यू टू बाय दिस सर्विस, एनीथिंग विच इज मिसिंग? तो जब मैं इस तरीके के सवाल पूछता था अपने कॉल्स पे तो बहुत बार प्रॉस्पेक्ट्स ओपन अप होते थे कि हाँ नहीं, ये प्रोडक्ट में ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि पैसा ऑब्जेक्शन नहीं था, उनको वैल्यू नहीं दिख रहा था मेरे प्रोडक्ट पे, दैट वाज मिसिंग। तो व्हेन आई एड्रेस देम देन मनी ऑब्जेक्शन अपने आप सॉल्व हो गया। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू मास्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ज़रूरी नहीं है प्रॉस्पेक्ट जो बोल रहे हो वो सही है, आप उनके पीछे के रियल रीजन को समझने की कोशिश करो एंड दैट्स हाउ यू विल विन दिस गेम। लेसन नंबर 9, लर्न हाउ ह्यूमन मेक डिसीजन। सो सेल्स कॉल इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे आप प्रॉस्पेक्ट्स को कन्विंस कर रहे होते हो, परसुएट कर रहे होते हो कि वो एक डिसीजन ले, एंड डिसीजन क्या ले? वो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ले। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग, वो क्या रीज़न है जिसके वजह से कोई परचेज करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक रेसिप्रोसिटी, सोशल सेलिंग, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। सो व्हेनेवर यू अंडरस्टैंड दीज रीजंस यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज ऑन योर सेल्स कॉल एंड आपके लिए कन्वर्जन ईजी हो जाएगा। इसके लिए एक बेस्ट बुक है इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट चियाल्डिनी। वो बुक आप डेफिनेटली पढ़िए, बिकॉज वो बुक में वो सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स बताए गए हैं जिसकी वजह से जो हमें इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग में। बिकॉज व्हेन यू रीड दैट बुक and you can start incorporating them on your sales call, your conversion will go high. Lesson number 10, learn to ask the right questions. And this is by far the biggest mistake that lot of salesperson make, कि उनको सही questions ही नहीं पता होता है। बहुत बार तो वो questions पूछते ही नहीं है, वो खाली अपने products के बारे में फीचर एक्सप्लेन करते हैं। No guys, you shouldn't do that. Rather you should be asking question and आपको सीखना होगा एक better question पूछना, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आप बेटर क्वेश्चन पूछ पाओगे उतना बेटर आपको आंसर मिलेगा, एंड जितना बेटर आपको आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप द सेल्स कॉल एंड योर कन्वर्जन्स विल गो हाई। सो लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, लर्न टू आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ यू विल विन द गेम। एंड वन ऑफ द वे टू डू दैट इज लिसन टू योर कॉल रिकॉर्डिंग। मैंने बहुत बार अपना कॉल रिकॉर्डिंग सुना है एंड वहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है कि मैं किस एरिया पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकता था, एंड दैट्स हाउ आई हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड दैट्स हाउ आई गेट बेटर एवरी टाइम ऑन ईच एंड एवरी सेल्स कॉल। लेसन नंबर 11, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स। अगर आप सिर्फ अटैच रहोगे रिजल्ट्स को लेके, अगर आप ये वरी करोगे कि अगर ये क्लोजिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये क्लोजिंग हुआ तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ रिजल्ट से अटैच रहोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लोज द डील। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड अटैच योरसेल्फ विद द प्रोसेस। यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, फॉल इन लव विद आस्किंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन एंड एम्पैथाइजिंग विद देयर सिचुएशन एंड देन लीडिंग देम नेचुरली टू द सोल्यूशन। बट अगर आप सिर्फ अटैच रहोगे रिजल्ट पे देन आपका वो डेस्परेशन कॉल पे दिखेगा, एंड अगर आप डेस्परेट हो गए प्रॉस्पेक्ट विल रन अवे फ्रॉम यू। सो मेक श्योर यू नेवर मेक दैट मिस्टेक।
लेसन नंबर 12, अंडरस्टैंड इट इज़ अ नंबर गेम। सेल्स इज़ अ नंबर गेम। आपको जानना पड़ेगा कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है। आप कभी भी 100% कन्वर्जन रेट पे क्लोजिंग नहीं कर सकते हो, राइट? इट्स इम्पॉसिबल। जो बेस्ट से बेस्ट क्लोजर होते हैं उनका भी 100% नहीं होता है, दे आर एट 40-50% मैक्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ नंबर गेम। तो यहाँ पर आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है लगातार। प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि कौन रेडी है आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। आपको ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप ये कंटिन्यूसली करोगे तब आपका पाइपलाइन फिल रहेगा, एंड पाइपलाइन फिल रहेगा तो आपके ज़्यादा सेल्स कॉल आप ले पाओगे। तो यदि आपका एक महीने में 30 कॉल स्केड्यूल है तो यू मेक श्योर यूर ऑल्सो डूइंग द प्रॉस्पेक्टिंग दिस मंथ, ताकि आपका नेक्स्ट मंथ भी फिल रहे। बिकॉज अगर आप इस महीने प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो अब ये 30 कॉल्स ले लोगे, 30 में से लेट्स से आपने 10-15 क्लोज कर दिया, बट फिर नेक्स्ट मंथ क्या? नेक्स्ट मंथ खाली रहेगा आपके लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ नंबर गेम। स्टार्ट प्रॉस्पेक्टिंग मोर पीपल, स्टार्ट बिल्डिंग योर पाइपलाइन इन एडवांस, ताकि सेल्स कॉल आप लेते रहो, वो आपका रुके नहीं। एंड लेसन नंबर 13, शो अप एवरी डे। अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ वन टाइम गेम कि आपने कोई कोर्स पढ़ा, मटेरियल पढ़ा एंड आप मास्टर बन गए। नो, इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ हैबिट, एंड एक हैबिट फॉर्म करने में टाइम लगता है। आई शोड अप एवरी डे फॉर द 12 months। आई वॉज लर्निंग सेल, आई वॉज टेकिंग सेल्स कॉल, लाइव सेल्स कॉल, मॉक सेल्स कॉल, मैं सारे कुछ कर रहा था, एंड दैट्स हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड my game. Similarly, you should show up every day, you should practice it every day, and that's how you will become master closure in the sales. Watch this video again. ये सारे 12-13 टिप्स को आप वापस से अच्छे से देखिए and see what you are going to implement on your sales call next time. If you like this video, please subscribe to this channel and do one more thing. Inside the comment box, enter your comments like what are your major challenges which you are facing on the sales call or anything related to client acquisition. And अगर आप चाहते हो मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ सेल्स पे, client acquisition पे, do also let me know that. Till then, I'll see you next time. Bye bye.